Hello dear students, this is Garima Miss. Welcome back to my English lecture. Before starting our new topic of today, let's memorize and remember that in the last lecture, that is the previous lecture, what we had studied. A very important topic we had done of the writing skill. We had completed in two parts, that is SOP, that is statement of purpose. Okay, it's a definite question in exam. So we had completed it, and now what we are going to do today also is a very important topic that we are going to take. It's very interesting from your upcoming examination point of view, and of course in your life also. So this topic name is group discussion. Yes student, this is the 3.6 group discussion. You can see this is the last topic of our writing skill that we are going to take today. So before starting, let me remind you one most important thing, that in your board exam, again I am presenting this slide which I had present same slide in SOP. SOP में भी मैंने ये आपको दिखाया था, और फिर से ये स्लाइड आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ कि राइटिंग स्किल में क्वेश्चन नंबर 4 वेयर ए में आपको 3 ऑप्शंस आएंगे. फर्स्ट वन इज ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, सेकंड इज एसओपी एंड थर्ड इज जीडी. सो हमने ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज लेक्चर देख लिया है. देन इवन वी हैड सीन, यू कैन सी एसओपी. लास्ट लेक्चर मेरा पूरा एसओपी पे था, तो वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है. और अब मैं आज कराने जा रही हूँ जीडी, दैट इज ग्रुप डिस्कशन. एग्जाम में याद रखना, फ्रॉम ऑल द 3 टॉपिक्स 1 क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम. यू हैव टू राइट फ्रॉम आउट ऑफ 3 एनी वन, क्योंकि मार्क्स आप देखो तो सिर्फ 4 मार्क्स है. तो 4 मार्क्स मतलब आपको ये तीनों ऑप्शंस में से कोई भी एक जो आपको इजी लगता है, where you can write by your own, express yourself, that only topic you have to select and write only one. Is that clear? So I hope my students are well understanding what I had said. So now you can see what we are going to do today in this slide. It is listed properly. Firstly, we are going to see the concept of group discussion, where we are going to learn what is group discussion, what are the benefits of group discussion, what are the advantages or uses of group discussion. That we are going to see in a very proper way. Next, we are going to see the icebreaker questions of GD, that is group discussion. Group discussion का जो icebreaker questions होता है, it's very important to see. So we will look at first and we will solve it so that our base would be clearer. Thirdly, we are going to see as it is present in the chapter, line by line हम like explanation भी देखेंगे, और उसके साथ साथ हम और एक चीज़ देखेंगे, language used in group discussion. ठीक है, so आप देख सकते हो on page number 167 you can properly see that chapter is there of group discussion that we will learn, and in that the language used in the group discussion, that also is there, that we will do. Next, 168 page number, if you would see, there is one sample of group discussion is given. So we will do first, that is very important for us to do, because how we have to write in exam, that we are going to do. Again I am repeating, जैसे आप लोग dialogue writing लिखते हो ना, वैसे ही आपका group discussion भी रहेगा. Is that clear? And lastly, we are going to see our group discussion, that is 3.6 chapter group discussion ka brainstorming question that we will solve today. So let's get quickly started with the topic concept of group discussion. Group discussion होता क्या है? Group discussion is a type of discussion that involves people. ठीक है, 10 से 12 लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं. They are sharing their ideas, activities, whatever they want to present, that people are present in the group, they share. Okay, group discussion, if you would see, is connected with one basic idea. कोई एक topic आपको दिया रहेगा, and on that topic you have to discuss among 10 to 12 people. It is based on the idea everyone in the group present his or her perspective. ये ग्रुप डिस्कशन में जो टॉपिक दिया रहता है, उसके ऊपर सभी लोग 10 से 12 लोग जो रहते हैं, डिस्कस करते हैं, वो सभी लोग अपना अपना व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं. ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंटिंग देयर ओन व्यूज़. इज दैट क्लियर? ग्रुप डिस्कशन इज अ डिस्कशन दैट गोइंग टू टेस्ट द कैंडिडेट स्किल. मतलब मैं आपको बता रही हूँ, ये सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक टॉपिक आपका लिमिट नहीं है. दिस टॉपिक इज़ फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यूज़. मतलब ग्रेजुएट हो जाओगे, उसके बाद जब जॉब के लिए आप जाओगे, तो आपको
ऑफ कोर्स हर जगह पे ग्रुप डिस्कशन है, तो ग्रुप डिस्कशन में हाउ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट योर सेल्फ, इट मीन्स इट टेस्ट द कैंडिडेट स्किल दैट द पर्टिकुलर पर्सन हु इज़ अप्लाइंग फॉर अ जॉब के लिए जो अप्लाई करने वाला पर्सन है उसमें लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, is having the communication skill or not, is having a good social skills or not, is having a behavioral और politeness or not, ठीक है। और उसमें टीम वर्क है कि नहीं, मतलब सिर्फ अपना ही बोला नहीं जा रहा है, सबका सुन रहा है। सो बी अ गुड लिसनर, तो लिसनिंग सुनता भी है कि सिर्फ अपना ही बोल रहा है। शुड हैव द जनरल अवेयरनेस और नॉट, सब टॉपिक के बारे में उसको कुछ पता भी है कि नहीं। कॉन्फिडेंस इज रिक्वायर्ड एंड ऑफ कोर्स यू कैन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब अगर ग्रुप में लोगों में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो सॉल्व कैसे करना है, दैट लीडरशिप कम्युनिकेशन, मतलब बोलने में एक्सपर्ट होना चाहिए। ऑल दिस थिंग्स इफ अ पर्टिकुलर कैंडिडेट और द पर्सन हु हैड कम फॉर टेक गेटिंग द जॉब, अगर उसमें ये सारा स्किल्स रहता है, सो वी कैन कॉल इट एज अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, वो पर्सन को जॉब मिलने लायक है। तो ये होता है ग्रुप डिस्कशन। सो आजकल इंटरव्यूज़ में हर जगह पे ग्रुप डिस्कशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो हमको एग्ज़ाम में एक लिखने के लिए आ सकता है, ग्रुप डिस्कशन आएगा। सो इन एग्जाम वी आर गोइंग टू सी द ग्रुप डिस्कशन विच इज़ गोइंग टू कम इन आर एग्जाम। तो एग्जाम में ये आपका, जैसे आप डायलॉग राइटिंग स्टूडेंट्स लिखते थे ना, सेम वैसी है, ठीक है। सम कैरेक्टर्स आर देयर, कन्वर्सेशन जैसे होता है ना, दैट इज़ डायलॉग राइटिंग, वैसा आपको लिखने का है जीडी में, ग्रुप डिस्कशन में। हाँ, मैं लैंग्वेज आपको ज़रूर बताऊंगी कि कहाँ कहाँ पे किस टाइप का वर्ड्स यूज़ करना है, किस टाइप का फ्रेजेस यूज़ करना है। सो प्लीज़ पे अटेंशन इन दिस लेक्चर। So let's see the introduction. Introduction, first point here it is mentioned. Group discussion is a modern method of assessing students' personality. Normally ये group discussion आप क्या देखोगे कि students अपने को कितना represent करता है, ठीक है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज़ द मॉडर्न वे ऑफ प्रेजेंटिंग द पर्सनस थॉट दैट हियर ग्रुप डिस्कशन स्पीक्स आउट। अगर ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट होता है तो ये हमको सिखाता है कि कैसे स्टूडेंट्स एक साथ आकर अपने व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं। सेकंड पॉइंट में बताया, जीडी इज़ अ प्रोसेस वेयर एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड ओपिनियंस टेक्स प्लेस। मैंने अभी बताया ग्रुप डिस्कशन में हम अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं और सामने वाला अपना आइडियाज़ प्रेजेंट करता है। सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट द अदर पर्सन इज थिंकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर टॉपिक। जैसे हम एक टॉपिक ले लेते हैं डाउरी सिस्टम, तो डाउरी सिस्टम अगर एक टॉपिक हमने लिया तो वो डाउरी सिस्टम पे मेरे क्या व्यूज़ है, सामने वाले का क्या व्यूज़ है, वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट, अ टॉपिक इज डिस्कस्ड बाय अ ग्रुप। ये याद रखना, ग्रुप डिस्कशन वेयर द ग्रुप ऑफ 10 to 12 पीपल्स आर इन्वॉल्व टू डिस्कस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। सो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप डिस्कशन। नाउ वी विल सी व्हाट इज ग्रुप डिस्कशन। अब ये ग्रुप डिस्कशन होता क्या है, दैट वी विल। ग्रुप डिस्कशन दैट इज जीडी मीन्स एक्सचेंज ऑफ व्यूज बाय पार्टिसिपेंट्स ऑन अ गिवन टॉपिक, ऑन ए गिवन सब्जेक्ट। अभी जैसे एक सब्जेक्ट है मे बी सोशल, तो सब्जेक्ट जैसे मैंने एजुकेशन पे ले लिया, गर्ल्स एजुकेशन पे ले लिया, ठीक है, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन पे ले लिया, या फॉर एग्जांपल मैंने कोई लाइक फैक्चुअल थिंग्स है लाइक प्लास्टिक्स शुड बी बैंड, यू नो, एनवायरमेंटल इश्यूज कुछ ले लिया, तो उसके ऊपर यू कैन सी द होल idea is to be bring together a set of people on a common platform to share ideas, thereby giving an opportunity to exhibit not only their knowledge but also to understand and enhance their learning by absorbing the thoughts of the other people. So it means what कि यहाँ पर एक ऐसे प्लेटफॉर्म मतलब एक साथ 10 लोग 12 लोग आके अपने व्यूज़, आइडियाज़, एजुकेशन के ऊपर, एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के ऊपर कोई भी जो टॉपिक दिया है, वी ऑल डिस्कस, वी ऑल एग्जिबिट दैट व्हाट वी थिंक फॉर अ पर्टिकुलर थिंग। उस टॉपिक से हमारी क्या नॉलेज है, हम क्या कहना चाहते हैं, और अंडरस्टैंड करना कि आगे सामने वाले का क्या थॉट है और हमारा क्या व्यूज़ है। तो इससे क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारी लर्निंग इंक्रीज होती है, वी आर मोर एब्जॉर्ब्ड विद द थॉट ऑफ द पीपल। मतलब सिर्फ मेरा ही थॉट नहीं है कि एजुकेशन फॉर द विमेन इज मस्ट, बट ऑल्सो अदर पीपल्स आर प्रेजेंटिंग विद डिफरेंट एग्जाम्पल्स, सो वी कैन से दैट दिस इज द करेक्ट ग्रुप डिस्कशन हैपेंस. Next is point is group discussion is a form of group
communication in which the participants share ideas, views, opinions and exchange information on a given topic. ये मैं starting से सिखा रही हूँ and again I'm saying GD is a form of communication where we speaks, where what we think that we speak. जो मैं सोचती हूँ, जो मैं समझती हूँ, वो मैं रिप्रेजेंट करती हूँ अपने फ्रेंड्स, अपने ग्रुप में, दैट इज़ जो पार्टिसिपेंट्स उस ग्रुप में हैं उनके सामने मैं अपने व्यूज़ प्रेजेंट करती हूँ. आई शेयर माई आइडियाज़, जो मेरे थॉट हैं, जैसे प्लास्टिक शुड बी बैंड, तो मेरे क्या व्यूज़ हैं, मेरे क्या आइडियाज़ हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ओपिनियन मेरा क्या है, ऑल दीज थिंग्स आई प्रेजेंट एंड एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन ऑन अ गिवन टॉपिक. और जो सामने वाला है उनको भी सुनती हूँ, बिकॉज इन ग्रुप डिस्कशन वी रिक्वायर अ गुड लिसनर ऑल्सो. सो नेक्स्ट यू कैन सी हियर इट इज़ ऑल्सो सेड, थर्ड पॉइंट, ग्रुप discussion refers to a communicative situation that allows its participants to share their views and opinion with other participants. Group discussion में क्या होता है, आप अपना व्यूज़ प्रेजेंट करते हो, सामने वाला अपना व्यूज़ प्रेजेंट करता है, आपको भी दूसरे का व्यू सुनने का है और वो भी आपका व्यू सुनेगा कि आपका इस टॉपिक से रिलेटेड क्या थॉट है. ये बहुत ही सिस्टमैटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, वेयर आई एम सेइंग समथिंग एंड अदर पर्सन इज ऑल्सो सेइंग समथिंग. व्यूज एंड ओपिनियंस अबाउट द टॉपिक, प्रॉब्लम, इशू और सिचुएशन अमंग द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप हु शेयर सम कॉमन ऑब्जेक्टिव. मतलब मेरा क्या थॉट है कि प्लास्टिक शुड बी बैन और नॉट, सामने वाला क्या सोचता है, अदर पीपल क्या सोचते हैं, तो ये सबके व्यूज़ एक साथ आप देखोगे राउंड द टेबल अगर प्रेजेंट होता है तो वी कैन कॉल इट एज अ करेक्ट ग्रुप डिस्कशन विच हैड हैपन. व्हाट इज जस्ट इन ग्रुप डिस्कशन, क्या चीज़ चेक किया जाता है, हाउ गुड यू आर एट कम्युनिकेशन विथ अदर्स. तुम लोगों से बात करने में, while you are talking with the people, while you are expressing your views among the people, how you are confident. यस, आपका कॉन्फिडेंस चेक होता है, हाउ यू बिहेव एंड इंटरैक्ट विद द पीपल. कभी कभी हम लोग गुस्से में आ जाते हैं, समटाइम्स वी बिकम एंग्री एंड वी कांट एबल टू स्पीक आउट प्रॉपरली. तो ये आपका चेक होता है कि आप कितना लेवल तक यू आर हैविंग द पेशेंस, आप में पेशेंस है कि नहीं. ठीक है. नेक्स्ट इज हाउ ओपन माइंडेड यू आर. मतलब सामने वाला जो व्यूज़ प्रेजेंट कर रहा है, सारे टाइम आप नो नो, आई डोंट एग्री नहीं कर सकते हो. समटाइम्स यू हैव टू एग्री द पर्सनस thought which is coming in front of you. And always a student, next point which is listed, your listening skills should be enhanced. आपका listening बहुत important है. आप पहले लोगों को सुनो, what the people is saying, सिर्फ अपने words मत represent करो. next is how you put forward your views. और तुमने सुन लिया सबका, अब तुम अपने views कैसे लोगों के सामने represent करते हो. ठीक है, that's the skill. एंड सेकेंड लास्ट, इफ़ यू वुड सी योर लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स. आप कितना लीडरशिप क्वालिटी आप में है कि आप लोगों से कनेक्ट करके यू कैन टॉक विद देम, यू कैन अंडरस्टैंड एंड ऑफ कोर्स यू कैन सी, यू कैन प्रेजेंट योर व्यूज़. ठीक है. योर लास्ट पॉइंट, इफ यू वुड सी योर एनालिसिस स्किल एंड सब्जेक्ट नॉलेज. और तुमको अगर एक टॉपिक दिया है, फॉर एग्जाम्पल आई हैड गिवन वन टॉपिक ऑन फार्मर्स. ठीक है, रिसेंट टॉपिक है, फार्मर्स के ऊपर मैंने एक टॉपिक दे दिया, तो अभी आप फार्मर्स के ऊपर कितना नॉलेज है आपको, वाई दे आर प्रोटेस्टिंग, क्या रीज़न है उनका प्रोटेस्ट का. मतलब आपको वो जो टॉपिक दिया है उसके ऊपर आपको नॉलेज भी होना चाहिए. तो इस तरीके से आपका कंटेंट आप जानते हो कि नहीं, आपका कंटेंट लेवल भी अंडरस्टैंड हो सकता है और आप कितना नॉलेज है आपके पास सोशल अवेयरनेस में, दैट इज़ ऑल्सो चेक्ड. ऑन पेज नंबर 167 in your text book, what are the things which I had given about the group discussion that we are going to see. बुक में दिया है, हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे. और प्लीज़ स्टूडेंट टेक आउट योर पेज नंबर 167 टू अंडरस्टैंड द चैप्टर मोर नाइसली. I had present in the points, but in a textbook you can see it is written in the paragraph form to make you understand more clearly. So now see group discussion, that is GD. A GD is a formal discussion. ठीक है, मतलब ये formally हम discuss करते हैं, informal नहीं रहता है, ये formal रहता है, where round the table 10 to 12 you can see participants are sitting over there, okay, and they are discussing about a particular topic. Okay, so discussion is a group discussion is a formal discussion conducted on a topic among a group of 10 to 12 participants. 10 से 12 participants के बीच में ये एक कोई भी टॉपिक पे डिस्कस होता है.
After that, must remember the participants analyze the topic from their respective angles and present their views and opinion. पार्टिसिपेंट्स जो भी रहते हैं वो लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं ये टॉपिक को, और उसको फिर वो लोग अपने हिसाब से रिस्पेक्टिव वे में व्यू प्रेजेंट करते हैं, ओपिनियन अपना अपना देते हैं। जैसे मेरा क्या ओपिनियन है, सामने वाले का क्या ओपिनियन है, अदर्स कैंडिडेट का क्या थॉट है, तो सब लोग अपना अपना थॉट प्रेजेंट करते हैं। तो इसको कहते हैं ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, सो वी कैन कॉल इट एज ग्रुप डिस्कशन। कुछ व्यूज़ है, अदर पीपल का कुछ व्यूज़ है, तो वो सबका सुनना पड़ता है एंड इवन यू हैव टू प्रेजेंट योर व्यूज़ इन अ वेरी इफेक्टिव वे। नेक्स्ट पॉइंट में बताया है द ग्रुप इज गिवन अ टॉपिक। ये ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है ना कि एक टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर ही आपको बहस करनी है। आपको यू डू नॉट हैव टू गो हियर एंड देयर, यू हैव टू डिस्कस ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक only. You do not have to go give the other topics. Okay, they contemplate on it. It means contemplate means understand, think over it. Contemplate means thinking, understanding on it for a few minutes and then can discuss or start the discussion. मतलब ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है ना, पहले एक टॉपिक दिया जाता है, वो टॉपिक पे सबको 2-5 मिनट का टाइम में आपको पहले समझना है क्या है, अपने थॉट्स सोच के रखने हैं, एंड देन इट इज स्टार्ट एंड देन यू हैव टू start the discussing and presenting your opinion and views. Okay, the discussion is usually for 10 to 15 minutes. ये जो ग्रुप डिस्कशन रहता है कोई भी टॉपिक पे 10 से 15 मिनट के ही बीच में रहता है, और जो एक्सपर्ट्स रहते हैं लिसन टू द मेंबर्स एंड इवैल्यूएट देम। एक्सपर्ट्स जो रहते हैं, जो ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट करने वाले हैं, वो लोग देखते हैं कि कितना पर्टिकुलर कैंडिडेट इस टॉपिक में इन्वॉल्व है, कैसे इनिशिएटिव ले रहा है। ऑल दिस थिंग्स द एक्सपर्ट्स लुक एट कि मेरे जो कैंडिडेट है, जो जॉब के लिए अप्लाई करने वाला है, उसमें सारे क्वालिटीज़ लाइक कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, पोलाइटनेस, लिसनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है कि नहीं, सब थिंग्स देखते हैं इसमें। ठीक है, सो शैल वी मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। काइंड्स ऑफ ग्रुप डिस्कशन, यू कैन सी देयर आर 4 काइंड्स ऑफ ग्रुप डिस्कशंस आर देयर, are usually held on a topic of 4 kinds. याद रखना, फर्स्ट वन इज फैक्चुअल, सेकेंड वन इज अ सोशल और पॉलिटिकल इशू, थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट एंड फोर्थ इज केस स्टडी बेस्ड। ठीक है, फैक्चुअल मतलब क्या होता है, जैसे रियलिटी ऑफ लाइफ, लाइक प्लास्टिक शुड बी बैंड, तो ये तो हमारा रियलिटी ऑफ लाइफ है, हम इसके ऊपर डिस्कस करना, तो इट्स वेरी इजी एंड वी कैन प्रेजेंट सम फैक्ट्स ऑल्सो। हम अपने एरिया का फैक्ट्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कैसे प्लास्टिक्स कलेक्ट होता है एंड हाउ इट इज़ हार्मिंग टू आवर एनवायरनमेंट, तो ये सारे थिंग्स हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड पे है हमारा अ सोशल और पॉलिटिकल इशू, एनी ऑफ द इशू यू कैन सी लाइक मॉरल पॉलिसिंग। ठीक है, कोई भी देखोगे सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज जो हमारे नियर बाय एरियाज में चल रहा है, लाइक अभी जैसे फार्मर्स का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, वो लोग इतना एजिटेटिंग कर रहे हैं, तो आप देखोगे एक पर्टिकुलर इशू के ऊपर हम इसके ऊपर टॉक करते हैं, ठीक है, एंड वी डिस्कस ऑन इट, तो वो होता है हमारा ग्रुप डिस्कशन अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल इशू। ठीक है, नेक्स्ट यू कैन सी एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कंसाइंस, मतलब जो एनी ऑफ द कंसाइंस, मतलब थिंकिंग लेवल। ठीक है, what you think and what I think, all the people should have to present their views। ठीक है, तो ये आपका कंसाइंस हो गया, मीन्स थिंकिंग लेवल, आपका थॉट प्रोसेस वाला टॉपिक आ सकता है। और लास्ट है केस स्टडी बेस्ड, वेयर द ग्रुप डिस्कसेस अ केस स्टडी एंड एनालाइजेस इट फॉर ऑफर्स सोल्यूशन, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया का ग्रुप एक केस स्टडी ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक वी कैन टेक इन अ पर्टिकुलर एरिया नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल। ठीक है, अब मैंने उसके ऊपर केस स्टडी किया कि ये एरिया में इतने अनएम्प्लॉयड पीपल हैं, और ये टाइमिंग में वो लोग, स्पेशली पेंडेमिक टाइमिंग में बहुत लोगों का जॉब जा चुका है, तो ये टाइम में कैसे हम इनको इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर हम केस स्टडी, मतलब कितने लोग का जॉब गया, तो उसके ऊपर हम सोल्यूशन क्या ला सकते हैं, ये सारे टॉपिक पे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये 4 टाइप का होता है, हमेशा से याद रखना। ओके, that here it has been said. Move to the third paragraph. थर्ड पैराग्राफ में क्या बोला है, ग्रुप डिस्कशंस आर वन ऑफ द इफेक्टिव इंटरैक्टिव मेथड्स ऑफ
क्लासरूम लर्निंग। अगर आप देखोगे स्टूडेंट, अगर मैं क्लासरूम में यही ग्रुप डिस्कशन अगर लाती हूँ तो मैं बताऊँ मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स का थॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक कैन बी इजीली अंडरस्टूड। बहुत जल्दी बच्चे ये टॉपिक अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दे आर यूज टू सिलेक्ट कैंडिडेट्स फॉर डिफरेंट कोर्सेज फॉर जॉब्स बाय एम्प्लॉयर्स। और यहीं से ना स्टूडेंट में कम्युनिकेशन एक स्किल इंक्रीज होता है, स्टूडेंट में लीडरशिप क्वालिटी आता है, स्टूडेंट में एक टीम वर्क आता है, लिसनिंग एबिलिटी इंक्रीज होता है। तो ग्रुप डिस्कशन इज द बेस्ट way to increase the qualities of a candidate which is required in a interview, that we can focus and can enhance the students ability। स्टूडेंट में जितने भी एबिलिटी है हम और अच्छा उसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं स्टूडेंट? वी कैन इंक्रीज बाय प्रेजेंटिंग द गुड लीडरशिप क्वालिटीज, कॉन्फिडेंस लेवल वी कैन evoke the teamwork, we can evoke so many things in a particular child so that that particular child is ready for the interviews which is going to come in his life or upcoming अपकमिंग फ्यूचर में जो वो डिग्री के बाद जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो ये बहुत उसको फ़ायदे में आ सकता है। They are used to gauge, it means judge, whether a candidate possesses certain skills required for pursuing a particular course or a job that involves working in groups, giving opinions, solve problems together to achieve common goals। अगर आप कहीं पे भी इंटरव्यू देने के लिए जाते हो वहाँ पर आजकल ग्रुप डिस्कशन मस्ट हो गया है। तो वहाँ पे जो जज रहते हैं वो कैंडिडेट मतलब जो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आए हैं उनका क्या क्या चीज़ चेक करते हैं, उनके सर्टेन स्किल्स चेक करते हैं फॉर द जॉब कि ये जॉब आगे जा करने के लिए ये पर्टिकुलर कैंडिडेट कितना फिट है। तो क्या चेक करते हैं? वर्किंग इन ग्रुप, ये लोगों के साथ वर्क ग्रुप में करने के लायक है कि नहीं। कुछ ने लोग आर्ग्यू करने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक पे, तो वो यहीं पे आउट हो जाएगा। अगर आप प्रॉपरली लोगों की बात सुन के यू कैन गिव योर व्यूज़ तो ये एक गुड क्वालिटी है कि वो जॉब पे स्टिक रह सकता है। नेक्स्ट इज गिविंग ओपिनियन। आप में कितना नॉलेज है, हाउ मच यू कैन गिव द ओपिनियन, हाउ मच यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द ग्रुप, ओके, एंड टू अचीव द कॉमन गोल्स। मतलब ग्रुप डिस्कशन कोई झगड़ा विगड़ा नहीं होता है, इट्स अ discussion where we are presenting our views and opinion on a particular thing or a topic which in coming future that is useful or we all have the common goals। Next, the candidates are tested on their knowledge and communication skills as well as their ability to work as a part of a group and to lead other towards conclusions and solutions। आप देखोगे यहाँ पे कैंडिडेट का क्या क्या चीज़ चेक होता है? नॉलेज, कितना नॉलेज है वो पर्टिकुलर कंटेंट पे, वो कंटेंट पे वो इंसान का कितना नॉलेज है, दैट हियर इट हैज़ बीन टेस्टेड। ठीक है। कम्युनिकेशन, ऑफ कोर्स कितने लोग को बहुत कुछ आता है बट दे आर हैविंग द लैक ऑफ वर्ड्स, वोकैबलरी, वर्ड्स शब्द की कमी रहती है इसलिए वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वहीं पे वो रिजेक्ट हो जाएगा कैंडिडेट। ठीक है। एबिलिटी टू वर्क एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, उसमें एबिलिटी है कि नहीं कि वो सबके साथ सुन के काम कर सके लाइक इन ग्रुप, एंड कैन लीड अदर टूवर्ड्स कंक्लूजन्स एंड सॉल्यूशंस, और दूसरे को भी वो बराबर से मोटिवेट कर सके, कन्विंस कर सके, जो उसका टॉपिक है, जो वो सोच रहा है वो दूसरे को भी कन्विंस करने उसको आना चाहिए। मुझे लास्टली हियर इन दिस पैराग्राफ इट हैज़ बीन सेड दैट वन शुड बी एबल टू यूज हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ सब्जेक्ट। उसमें सब्जेक्ट नॉलेज बहुत कंपलसरी, ये तो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर से बोला है कि आपके पास नॉलेज नहीं है ना, यू कांट एबल टू डिस्कस ऑन इन अ ग्रुप। ठीक है। तो आपको सबसे पहले यू शुड हैव द कंटेंट मतलब कोई भी सब्जेक्ट या टॉपिक के ऊपर नॉलेज होना चाहिए, टू गिव ओपिनियंस ऑन इट एंड सपोर्ट हिज आइडियाज़ एंड विथ लॉजिकल आर्गूमेंट। मतलब आप अगर कोई कुछ बोल रहा है तो आप में लॉजिकली यू शुड हैव द गुड वे ऑफ टॉकिंग विद दैट पर्सन, presenting your views and opinion in a more intellectual and confidence way। पैराग्राफ में क्या बोला है? सिंस कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस, सिर्फ मैं बोलती रहूँ सामने वाला चुप रहे तो वहीं पे रॉन्ग हो जाता है ग्रुप डिस्कशन। वी बोथ रिक्वायर्ड टू स्पीक इन द ग्रुप डिस्कशन। इन ग्रुप डिस्कशन नॉट ओनली यू आर स्पीकिंग बट दोज हु आर देयर इन द ग्रुप ऑल आर रिक्वायर्ड टू स्पीक आउट। इट इज important that beside speaking one listens to the participants in the group discussion and responds to their ideas or take them forward। तो group discussion where all are equally required to start,
present their views. Okay, so you can contribute to a group discussion in some of the following ways. यहाँ पे कुछ ways दिया है where you can present your way of group discussion. हेल्पिंग इट स्टार्ट, सबसे पहले गुड स्टार्ट करो ग्रुप डिस्कशन का. अब टेलिंग द पीपल अबाउट द टॉपिक, देन गिविंग द डायरेक्शन टू इट. मतलब कभी कभी हम लोग टॉपिक से अलग चले जाते हैं, नहीं, यू हैव टू स्टिक विद द टॉपिक. ओके, नेक्स्ट आप में इतना क्वालिटी होना चाहिए इन द ग्रुप दैट मेकिंग श्योर दैट एवरीवन्स व्यूज आर हर्ड. जो मैं सोच रही हूँ, अदर सोच रहा है, सबके प्रॉब्लम्स को सुनो. यू शुड लिसन एंड थॉट अबाउट सो दैट द ग्रुप मूव फॉरवर्ड सम काइंड ऑफ एग्रीमेंट. ओके, मतलब सबका सुनना है और सुनने के बाद अगर तुमको कोई थिंग्स कन्विंसिंग लगती है तो वो चीज़ कन्विंस करने के लिए यू हैव टू मेक द पीपल एग्री. ओके, ये आप में क्वालिटी आनी ही चाहिए. ठीक है, लास्ट में व्हेन योर ग्रुप इज रेडी फॉर द एंड ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, दैट टाइम क्लोजिंग विद अ समरी और अ कंक्लूजन. कोई एक पर्सन को होना चाहिए जो वो जितना टॉपिक पे वो लोगों ने स्टार्ट किया डिस्कशन, उसके ऊपर बात करके कंक्लूड करने के लिए दैट एबिलिटी यू शुड हैव टू मेक योर ग्रुप डिस्कशन सक्सेसफुल. तो ये आपके स्टार्टिंग पैराग्राफ 4 पैराग्राफ्स में रिप्रेजेंट किया है. Now let's move to the very important topic of today, that is language of group discussion. In group discussion, starting I had said it's a formal discussion where you have to speak in a very formal way. It's not an informal way कि आपके friends बैठे हैं and you are chatting. No, whatever you are speaking, you should keep in mind that they all are my colleagues. Here are some expressions you can use to perform different functions during a group discussion. Firstly, expressing opinion. अगर आपको अपना opinion express करना है तो you can start with the phrase I believe that, I think that. ठीक है, could I make a point please. अगर तुम्हारा चांस नहीं आ रहा है तो you can say in between that could I keep my point please, requesting the groups to टेक द अटेंशन ऑन योर. तुम्हारे पे भी अटेंशन जाना चाहिए कि तुम भी वो ग्रुप में, तो ऐसा तुम वर्ड्स फ्रेज यूज़ कर सकते हो. इन माई ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है, वॉट आई फील, इट सीम्स टू मी, मतलब जो मुझे लगा, वॉट आई फेल्ट दैट आई हैड सेड. तो इस तरीके का आप फ्रेज बोल के स्टार्ट कर सकते हो. नेक्स्ट इज एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट. अगर कोई डिस्कशन हो रहा है और तुमको उससे एग्री है, तुम उसको चाह रहे हो कि हाँ मैं भी इसके साथ हूँ, व्हाट हिज पॉइंट इज, तो आप इन बिटवीन में इतना कुछ बोल सकते हो, एब्सोल्युटली आई एग्री, यू आर राइट, आई फुल्ली एग्री विथ यू. तो ये सारा फ्रेजल वर्ड्स बोल के आप अपने डिस्कशन को, जो सामने बोलने वाला डिस्कशन है, उसके साथ आप यू कैन सी कनेक्ट कर सकते हो. नेक्स्ट, इफ़ यू वुड सी एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट. कभी कभी तुम्हारे अगेंस्ट में कोई थिंग्स जा रहा है, तुमको वो चीज़ नहीं पसंद आ रही है, तो व्हाट आर द फ्रेजल वर्ड्स यू कैन यूज टू स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन. तो आप बोल सकते हो आई एम अफ्रीड आई डोंट एग्री विथ यू. मेरे को बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि आई एम नॉट एग्री विथ वॉट इज हैपनिंग इन द ग्रुप डिस्कशन. नेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हो आई एम सॉरी बट आई से इट इज़ लिटिल डिफरेंटली. आप ऐसे भी बोल के अपना थॉट, you can keep your opinion, your view in front of it, that I am very sorry to say but I am but I have a different opinion. Then आप ऐसे बोल सकते हो I can see your point but, मैं समझ सकती हूँ आपका point but मेरा भी एक thought है, what I want to speak out. Next you can see you may have something there but I want to say in such a way. Next, I respect your point of view but I am sorry I can't go along with you on. Okay, means सामने वाला का जो point है you respect it but you do not agree with the particular point which is coming in front of you. ऐसे बोल के भी आप अपना way of you can see opinion and views you can represent. Next you can see suggestion. If you want to give some suggestion, page number 168 please turn. If you want to suggest something, तो आप कैसे words use कर सकते हो? I think we should, मतलब हम सब, I think we should. Next you can say why don't we, ऐसा क्यों नहीं हम करते हैं, why don't we. ठीक है, let's start, let's do this. Okay, then couldn't we,
क्यों नहीं हम ये कर सकते हैं, इवन हम ये भी थिंक्स कर सकते हैं, ठीक है. देन वी कैन से डोंट यू थिंक वी कुड डू, ऐसे करके भी आप सेंटेंसेस अपने ग्रुप डिस्कशन में यू कैन स्टार्ट इट. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज आस्किंग फॉर ओपिनियन. इफ यू आर आस्किंग फॉर अदर पीपल्स ओपिनियन, व्हाट आर द वर्ड्स दैट यू आर गोइंग टू कीप? वॉट इज़ योर ओपिनियन ऑन, तुम्हारा क्या ओपिनियन है. वॉट डू यू फील अबाउट, तुम क्या सोचते हो. आई वॉन्डर वॉट यू थिंक अबाउट. ओके, आई जस्ट वॉन्डर वॉट यू आर थिंकिंग, सो प्रेजेंट योर व्यूज इन फ्रंट ऑफ अस. आई डिड लाइक टू नो यू स्टैंड ऑन. किसी और का ओपिनियन जब तुमको पूछने का है, समझने का है कि उसका क्या सोच है और तुम्हारा क्या सोच है, तो वो टाइम पे आप ये सारे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेटिंग. इंटरप्रिटेटिंग मीन्स लाइक वॉट यू इंटरप्रेट, तुमको क्या समझ में आया सामने वाले का थॉट प्रोसेस सोच के. आई एम सॉरी टू इंटरप्रेट, बट तुमको कुछ बताने का है, कुछ उसके व्यूज़ अलग है तुम्हारे से, तो आप ऐसे स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो. एक्सक्यूज़ मी, कुड आई ऐड समथिंग प्लीज़. कभी कोई टॉपिक चल रहा है और उसमें तुम्हारे व्यूज़ अच्छे हैं एंड यू वांट टू ऐड इट, यू कैन यूज़ दिस स्टेटमेंट. नेक्स्ट, दैट्स ट्रू, सॉरी बट. अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है और उसमें तुम अलग व्यू में प्रेजेंट हो, तुम इंटरप्रेट उसको अलग करते हो, तो यू कैन से आई एम सॉरी बट आई कैन से इन सच अ वे. नेक्स्ट इज हैंडलिंग इंटरप्रिटेशन. अगर लोगों के थॉट्स चल रहे हैं तो आपको भी अपने थॉट्स प्रेजेंट करने, व्यूज़ रखने, ओपिनियन रखने, तो आप क्या वर्ड्स बोल के स्टार्ट कर सकते हो. जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, आई वॉन्ट टू स्पीक इट. मैं थोड़ा सा टाइम रुको, मुझे भी कुछ कहना है. कुड आई फिनिश वॉट आई एम सेइंग. अभी कोई बीच बीच में बोल रहा है तो उसको बोलो कि कुड आई फिनिश वॉट आई एम सेइंग, लेट मी फिनिश फर्स्ट एंड देन यू स्पीक आउट. ऐसे करके आप बोल सकते हो. इफ़ यू वुड जस्ट लेट मी फिनिश, कैन यू, मतलब इफ़ यू वुड प्लीज़ अलाउ मी टू फिनिश माई वर्ड्स एंड देन एनी अदर पर्सन वुड से कुड यू वेट फॉर अ मिनट प्लीज़. अगर आपको कुछ सडन आइडियाज़ आ गया एंड इफ यू वॉन्ट टू कीप इन फ्रंट ऑफ इट, सो वॉट यू कैन स्पीक इन सच अ वे. नेक्स्ट यू कैन सी कंक्लूडिंग. कंक्लूडिंग में आप क्या बोल सकते हो? टू समराइज, टू कंक्लूड. लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ. वी कैन conclude by saying, मैं लास्ट इतना बोलना चाहती हूँ. लेट्स रन क्विकली थ्रू द मेन आइडियाज़ बिफोर कंक्लूडिंग द डिस्कशन. ये डिस्कशन पूरा कंप्लीट होते होते मेरे को अपना पॉइंट्स रिप्रेजेंट करने दो, मुझे ये बोलने का है. तो आप ये एक अच्छा रख सकते हो व्यूज़ इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल. टू समराइज, टू कंक्लूड, लेट्स रन क्विकली थ्रू द मेन आइडियाज़ एंड कंक्लूड द डिस्कशन. इस तरीके से आप लास्ट में समराइज एंड कर सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो ऑफ योर group discussion. Now let's move to the sample group discussion where we will learn how to write in the board exam if the group discussion question is coming. One question आपको एग्जाम में दिया गया रहेगा and accordingly you have to write the group discussion. Group discussion हमारा एक डायलॉग राइटिंग की तरह रहता है. तो सेम वे यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन जब भी स्टार्ट करना, पहले एक इवेल्युएटर रहता है, ठीक है. वो इवेल्युएटर क्या करता है, पहले टॉपिक बताता है एंड अकॉर्डिंगली आपका जो डिस्कशन है फिर स्टार्ट होगा. और इसमें कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं, मतलब आप कोई भी कुछ 2-3 गर्ल्स 2-3 बॉयज़ करके आप कम से कम 6 कैरेक्टर्स इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो. जैसे यहाँ पे यू कैन सी मनीषा, अनामिका, जॉन एंड लेटर ऑन अनन्या. 4 कैरेक्टर्स वर इन्वॉल्व. दे वर डिस्कसिंग अबाउट वन टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज बेस्ड ऑन दैट टॉपिक दे आर प्रेजेंटिंग देयर व्यूज़, आइडियाज़, ओपिनियंस एंड समटाइम्स दे एग्री and sometimes they do not agree. So what are the words we have to use while speaking and what are the statements that we have to write, that here it has been seen as a sample group discussion. So let's get quickly started. Evaluator, you have been given a few minutes to think on your topic for today's group discussion, which is topic क्या है? Do you think teenagers should be given a separate mobile phones? You may now begin the discussion. Who would like to start? तो यहाँ पे एक इवेल्युएटर, आपको एग्जाम में एक इवेल्युएटर करके पहले फर्स्ट लाइन में लिखना है और वो बोलेगा कि आई एम गिविंग यू फ्यू मिनट्स एंड माई टॉपिक ऑफ टुडे इज दिस एंड नाउ हु विल स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन फर्स्ट. ऐसे करके स्टार्ट करने का. सो फर्स्ट मनीषा सेज, आई थिंक द टॉपिक ऑफ दिस डिस्कशन इज वेरी रेलिवेंट टू ऑल ऑफ अस हियर. एज टीनेजर वी आर सो फॉन्ड ऑफ आवर मोबाइल फोन्स बट इट्स डिफरेंट फीचर्स that have been become irresistible to us. I feel mobile phones are quite necessary. They are quite helpful for educational purpose. We can get support for their various subjects just at the
click of a button. So here Manisha is presenting her views, positive भी बोल रही है थोड़ा negative भी, but she present in a very proper way कि we require the mobile phone, correct, but there are some apps are there which we are distracted. But next in the group discussion comes is next character, that is Anamika. ठीक है, एक एक कन्वर्सेशन में अलग अलग लोगों का नाम आएगा, कम से कम 4 to 6 कैरेक्टर्स रहने ही चाहिए. इज दैट क्लियर? व्हाट शी इज सेइंग, आई ऑल्सो एग्री विथ सुहासिनी, because nowadays people use smartphones and they can get access of any information they want, like travel, like information, recipes, courses, anything whatever you want to do, you can easily get the informations from there. Means Anamika is supporting the view that we require the mobile phone. Next is John. John is saying yes, I would also like to add, ऐसे करके आपको phrases start करना है, ठीक है. To it, I don't think students use the mobile phones only for seeking useful information, they use it for entertainment too. तो जॉन अब थोड़ा उसका नेगेटिव पॉइंट भी बता रहे हैं कि सिर्फ स्टूडेंट्स उसका पॉजिटिव वे ही नहीं लेते हैं, लाइक लर्निंग, मोबाइल फ़ोन लिया तो सिर्फ पढ़ ही रहा है, दे टेक इन अ वेरी, समटाइम्स दे टेक फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पज ऑल्सो, दे लिसन टू द सॉन्ग, दे वॉच मूवीज. सो आई एम अफ्रेड दैट दे सी अनसुटेबल थिंग्स टू, देयरफॉर दे स्पेंड लॉन्ग आवर्स ऑन फोन. मतलब सिर्फ वो लोग स्टडी से स्टिक नहीं रहते हैं, दे आर ऑल्सो सीइंग अदर थिंग्स लाइक सॉन्ग्स एंड वॉचिंग मूवीज. अनामिका इज अगेन कमिंग इन द डिस्कशन एंड शी इज सेइंग yes Deepak, you are absolutely right, but I think parents have made them aware of the abuses of the mobile phones. They are mature enough to understand how to use the mobile phones productively. Anamika is listening the point of Deepak who is also saying something. So वो दीपक के point को लेके present कर रही है कि दीपक का भी point सही है, that parents should aware of what the child is seeing. Parents को पता रहना चाहिए कि child मेरा क्या देख रहा है, which type of movies, songs he or she is seeing. Next, Ananya is coming in the discussion. She is saying yes, all this is true, but don't you all agree that they do see unwanted things and waste their time in things but not suitable for their age group? So Ananya is saying that she is coming in the discussion and she is saying a very important thing, that she is presenting her negative view that with saying mobile phones is necessary for the teenagers, because sometimes it is not also, because teenagers do not use in a proper way. Next, John is saying I agree with the मंजुला भी कुछ कहना चाह रही थी तो जॉन उसको एग्री करके बोल रहा है, इट इज़ शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी. मतलब जॉन ने तो डायरेक्टली बोल दिया कि पहले से वो डिसएग्री था और अभी भी डिसएग्री है कि मुझे बिल्कुल भी मोबाइल फ़ोन का ज़रूरत नहीं है, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, money and energy. Anamika is saying, I feel that most of the students have forgotten the basic use of the mobile phones. They have to travel long distances for tuitions and other purposes. The parents can keep a track on their children. That is the main reason why parents have given them mobile. So Anamika is saying a very proper statement. Next, John is again saying yes, but the students have become lazy. Of course, अगर हम मोबाइल फ़ोन दिन भर अपना यूज़ करते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पज़ भी चलो, तो वो लेज़ी हो गया ना, मतलब हम कुछ सर्च नहीं कर रहे हैं, जो सामने दिखा हम उसको कॉपी पेस्ट कर दिए. सो बिकॉज ऑफ दिस इन द चाइल्ड देयर इज़ अ लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, दे डोंट रीड द बुक्स, दे ओनली कीप ऑन सीइंग द फोन एंड कीप रिंगिंग, डिस्टर्ब्स द चाइल्ड ऑल्सो. और दिन भर अगर आप मैसेजिंग चैटिंग करते हो तो रिंग करने से ऑफकोर्स वी आर बीइंग डिस्ट्रैक्टेड. नाउ मनीषा again is coming in the discussion. She is saying parents institution blocks some of the sites so that the students are not able to view or watch unwanted materials. The risk is there that, but with advantages there are disadvantages too. So you can see Manisha is again concluding by saying, अब लास्ट में कंक्लूजन में आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पकड़ के कैरेक्टर को बोलना है कि ऑफ कोर्स देयर इज़ अ पॉजिटिविटी दैट मोबाइल फोन्स टीचर्स आर सो मेनी थिंग्स, बट नेगेटिव भी है कि, तो नेगेटिव है तो कोई साइट्स अगर ख़राब है जिसमें हमको जाके नहीं देखना है तो वो साइट हमको ब्लॉक कर देना चाहिए, सो दैट द चिल्ड्रन कैन ओनली स्टिक विद द स्टडिंग साइट्स. इवेल्युएटर, लास्ट में इवेल्युएटर ज़रूर आएगा. इवेल्युएटर इज सेइंग ऑल राइट एवरीवन, योर टाइम इज़ नियरली अप, अब तुम लोग का बोलने का वक्त खत्म हो गया, कुड समवन कंक्लूड प्लीज़. ओके, और लास्ट में इवेल्युएटर इज टेलिंग टू दीज स्टूडेंट्स दैट प्लीज़ कंक्लूड द ग्रुप डिस्कशन विच यू हैड स्टार्टेड. ऐसा आपको लिखने का है. सेकेंड लास्ट लाइन में इवेल्युएटर बोल रहा है सारे स्टूडेंट्स को दैट कम ऑन कंक्लूड द कंक्लूजन एंड कंक्लूड दिस ग्रुप डिस्कशन. तो एक कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर को आप दे सकते
सकते हो, जैसे जॉन ने नेगेटिव भी बोला, थोड़ा पॉजिटिव भी बोला, तो उसको दे दो एंड जॉन विल कंक्लूड इट. सो हाउ इज ही इज कंक्लूडिंग, प्लीज सी. टेकिंग द पॉइंट्स इनटू द कंसिडरेशन, मोबाइल इज अ गुड एंड यूजफुल टूल, ठीक है, बट अ time period should be allotted to the students to use the mobile so that the students do not become couch potatoes. मतलब सिर्फ एक जगह पे बैठ के ही स्टूडेंट सिर्फ मोबाइल चलाते रह जाएंगे तो हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है, यू नो. आई प्रॉब्लम्स, यू नो, पॉस्चर प्रॉब्लम, आपको बॉडी में एक होने लगता है. साइकोलॉजिकल, आप स्ट्रेस में आ जाते हो, ठीक है, हैव इंक्रीज. दे समटाइम्स बिकम वायलेंट एंड इफ मोबाइल फोन्स आर टेकन अवे फ्रॉम देम दे कैन यूज दीज फोन्स बट दे शुड बी मेड टू यूज दैम जुडिशियली. मतलब अगर हम लोगों को इतना कंपल्सरी nowadays it is required that we all should use the mobile phone, it is required that we should use in a judicially, means only studious apps and sites would be there. So वही रहना चाहिए, न कि unwanted side where the children are going and seeing and being distracted. तो इस तरीके से आपको end करने का है. So let's start our next topic of today, that is icebreaker questions. So first question is, you must have discussed many things with your friends, classmates in a group. It might be about going on a picnic or selecting a gift for teacher. First one, what do you think are the benefits of a group discussion? अगर हम एक ग्रुप में रहते हैं और डिस्कस कर रहे हैं कोई टॉपिक पे, फॉर एग्जाम्पल आप पिकनिक जाना है या गिफ्ट टीचर को देना है, तो ऑफकोर्स वी डू द डिस्कशन. सो उसके बेनिफिट्स क्या हैं? ऑफकोर्स इट हैज़ अ बेनिफिट्स. पॉइंट नंबर 1, प्लीज़ राइट. Group discussion improve our communication skills. Secondly, group discussion improve our divergent ideas. मतलब मेरे कुछ आइडियाज़ है, दूसरे के कुछ आइडियाज़ है, तो ऐसे मिलके एक अच्छा हम डिसीजन ले सकते हैं. थर्ड, दैट इज सी, ग्रुप डिस्कशन इम्प्रूव आर एनालिटिकल स्टडी स्किल्स. मतलब कुछ नॉलेज समटाइम्स हमको नहीं रहता है कोई थिंग्स के बारे में, बट एज वी आर डिस्कसिंग इन द ग्रुप वी कैन गेट मोर नॉलेज अबाउट इट. सो दैट्स हियर इट हैज़ बीन सेड. नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट इज सेकेंड वन. डू यू थिंक सम पीपल आर राइट एंड सम आर रॉन्ग इन अ ग्रुप डिस्कशन एंड वाई? कुछ लोग का देखो आइडियाज़ पॉजिटिव जाता है और कुछ लोग का नेगेटिव जाता है. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट यू थिंक कि जो पॉजिटिव जा रहा है सबका पॉजिटिव ही जाएगा, या सब लोग तुमसे एग्री करेंगे कि नेगेटिव भी रहेगा थॉट? यस, आई डू बिलीव दैट एवरी ग्रुप डिस्कशन कंसिस्ट ऑफ सम पीपल हु आर राइट एंड सम हु आर रॉन्ग. सब लोग तुमको एग्री नहीं करेंगे, सम मे बी डिफरेंट. Okay, this is because a person opinion is influenced by many things in life, and this influence may have the right approach to a discussion and some may not. मतलब कुछ लोग का पॉजिटिव व्यू रहेगा, कुछ लोग का नेगेटिव व्यू रहेगा, हमको सबको सुनना है. नेक्स्ट थर्ड वन इज, पीपल हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियन बिकॉज सबका अलग अलग थॉट रहता है. पर्सपेक्टिव मीन्स अलग अलग व्यूज़. मेरा कुछ और सोच है, तुम्हारा कुछ और सोच है. देखो यहाँ पे दो कॉलम में दो यू कैन सी वेब दिया है ब्लैंक, और दो फिल करके दिए हैं. फर्स्ट इज जोग्राफिकल और दूसरा है कल्चरल. दो और हमको फिल करने इज़ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल. सबके अलग अलग थॉट क्यों हो जाते हैं? एक तो हम जैसे जिस एरिया में रहते हैं वो वजह से हमारा थॉट रहता है. कुछ लोग का पॉलिटिकल वे में रहता है, मतलब जो उनका सोच है, लाइक इन अ सोसाइटी समटाइम्स योर व्यू एंड अदर व्यूज़ आर डिफरेंट. नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिकल. कभी कभी पैसे के वजह से हम दूसरा ओपिनियंस प्रेजेंट करते हैं और डिफरेंट व्यूज़ रहता है. और कल्चरल मीन्स हम जो कल्चर से बिलोंग करते हैं, दैट्स वाई वी आर हैविंग द डिफरेंट ओपिनियंस. नेक्स्ट यू कैन सी, कंप्लीट द वेब हाईलाइट द यूजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन. वन इज़ डन फॉर यू. आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट एक करके दिया है यूजेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन. अभी पूरा लेक्चर मैंने अभी सिखा दिया है. आई होप दैट यू आर नाउ नोइंग कि ग्रुप डिस्कशन का फ़ायदा कहाँ पर है. सो ग्रुप डिस्कशन यूज इज ऑफकोर्स इन जॉब इंटरव्यूज. और 3 कॉल वेब आपको कंप्लीट करना है. सो प्लीज सी आई आर प्रेजेंट इन द आंसर. इन इफेक्टिव क्लासरूम लर्निंग, येस. नेक्स्ट इज इन फैमिली मेम्बर्स. फैमिली मेम्बर्स में ऑफकोर्स इट इज़ वेरी यूजफुल. प्रॉब्लम्स ऑफ द फैमिली वुड बी सॉल्व. नेक्स्ट इज इन पार्लियामेंट. मतलब अगर पार्लियामेंट में अगर हम नेशन के रिलेटेड कोई यू कैन सी डिस्कस कर रहे हैं नेशन प्रॉब्लम का, तो वो बहुत जल्दी सॉल्व हो सकता है. सो इट्स यूज इज़ वेरिएंट. Next topic which is very important that I am taking today is how to write group discussion और dialogues in exam. ये एक dialogue जैसा ही रहता है group discussion. तो मैंने एक आपके सामने present किया है slide so that आपको थोड़ा idea और अच्छा आ जाए कि exam में अगर आता है तो हमको कैसे लिखने का है.
बिगिनिंग द डिस्कशन विद द स्टार्टिंग द टॉप, पहले आप याद रखो इसमें पार्टिसिपेंट्स आपके मैंने बताया है कम से कम 6 पार्टिसिपेंट्स तो रखना है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो पार्टिसिपेंट ए, मतलब जो पार्टिसिपेंट ए का नाम आपको लिखने का है, ठीक है। और वो जो रहेगा वो स्टार्ट कैसे करेगा, बिगिनिंग द डिस्कशन विद स्टेटिंग द टॉपिक और इंट्रोड्यूस द जीडी टॉपिक टू द पार्टिसिपेंट्स विद पर्पस, मतलब जो इवैल्यूएटर है वो बता के टॉपिक इंट्रोड्यूस करेगा कि पार्टिसिपेंट्स जो यहाँ पर हैं वो किस टॉपिक पे आज बोलने वाले हैं एंड व्हाट्स देयर मेन पर्पस। तो ये इवैल्यूएटर का काम है और वो हमेशा याद रखना, इवैल्यूएटर स्टार्टिंग में बोलता है और लास्ट में कंक्लूड करता है, ठीक है। तो इवैल्यूएटर वर्क इज टू स्टार्ट एंड मेक द स्टूडेंट्स रियलाइज दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ द group discussion and what is the topic. Next is participant B. Participant B, if you would see, is another character, another person's name you have to put forward, and what's the statement that the person will write the first point of view with positive sentences and write give the decision for that. मतलब क्या रहेगा स्टूडेंट की स्टार्टिंग अगर होगा तो फर्स्ट स्टूडेंट जो रहेगा दैट स्टूडेंट इज प्रेजेंटिंग द व्हाट दे आर प्रेजेंटिंग द पॉजिटिव। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले याद रखना यू हैव टू प्रेजेंट द पॉजिटिविटी, एनी पॉजिटिविटी यू हैव टू पुट फोर्थ, ठीक है। कभी भी टॉपिक नेगेटिव वे से नहीं स्टार्ट होता है। अगर मैं एक कोई भी टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल एनी सोशल टॉपिक, इफ़ आई विल से एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी, तो मैं डायरेक्टली उसके डिसएडवांटेज से स्टार्ट नहीं करूँगी, पहले पीपल को अवेयर कराऊंगी कि व्हाट्स द प्रॉब्लम, हाउ इट अराइज्ड, ऑल दिस थिंग्स आई विल मेक द पीपल अंडरस्टैंड। तो मेरा पॉजिटिव ही सेंटेंस रहेगा, उसके बाद मैं उसके प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट करूँगी। पार्टिसिपेंट सी, मतलब नेक्स्ट कैरेक्टर का यहाँ पे नाम आएगा, वो क्या बोलेगा, राइट और गिव द कंटिन्यू पॉइंट ऑफ व्यू एज अ सपोर्टिव थॉट टू द फर्स्ट विद द डिफरेंट रीजन्स। अब नेक्स्ट पर्सन का जब चांस आएगा तो वो भी कंटिन्यू में उसके बोलेगा, मतलब जहाँ पे अगर उसने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बोला तो ये भी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बोलेगा, बट वो बताएगा कि कितने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कितना लेस हो रहा है। तो ये सारे थिंग्स वो रीज़न के साथ रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया नेक्स्ट कैंडिडेट, नेक्स्ट स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेंट डी। यहाँ पे याद रखो सेम कैरेक्टर का नाम नहीं आएगा, आपके दिमाग में 5-6 कैरेक्टर्स का नाम रहना चाहिए और एक के बाद एक आपको रिप्रेजेंट करना है। इसमें क्या रहेगा, राइट अनदर पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मतलब व्यू पॉइंट अबाउट द टॉपिक, देन फर्स्ट 2 कैंडिडेट्स एंड गिव रीजंस। वो क्या करेगा, वो पहले फर्स्ट 2 कैंडिडेट्स का सुनेगा और सुनने के बाद वो अपना पहले रिप्रेजेंट करेगा व्यू और बताएगा कि ये दोनों में वो अगर एग्री हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर डिसएग्री हो रहा है तो वो ये भी बताएगा कि आई एम नॉट एग्री विद द पर्सन विद द फर्स्ट 2 कैंडिडेट्स एज माई व्यू इज दैट, और ऐसे करके वो रिप्रेजेंट करेगा कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितना लेस हो रहा है, हाउ द पीपल आर फेसिंग, पीपल आर वेल एजुकेटेड बट स्टिल दे आर नॉट गेटिंग अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन देयर जॉब। तो इस तरीके से वो रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट का क्या काम है, पार्टिसिपेंट ई, ये नेक्स्ट कैरेक्टर का नाम यहाँ पे आएगा, एड सम अनदर पॉइंट। वो भी ये जो नेगेटिव पॉइंट थोड़ा बोला है तो उसमें वो और कुछ ऐड करेगा, नेगेटिव पॉइंट्स, एड सम अनदर पॉइंट्स मीन्स सपोर्टिव और कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट्स। अब यहाँ पे ये जो ई वाला रहेगा वो थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स डाल सकता है, दैट द गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग इनिशिएटिव, और फॉर एग्जाम्पल एनी ऑफ द पीपल इज नाउ द पीपल बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर फेसिंग सो मच ऑफ इकोनॉमिकल डिफिकल्टीज। तो वो सारा रीजन्स प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट करेगा थ्रू दिस। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट एफ का क्या रहेगा, राइट अ स्टेटमेंट अबाउट अ टर्न टू योर ओन मेन पॉइंट। अभी थोड़ा अगर कभी कभी डिस्कशन थोड़ा बाहर जा रहा है तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट का वर्क क्या है, वो अगेन जो स्टार्टिंग पॉइंट हुआ था दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट पे, जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो कंट्री इंडिया में बहुत लेस होता जा रहा है उससे रिलेटेड अब वो फिर से फोकस करेगा कि हमारा मेन एजेंडा है आज का टॉपिक का कि हाउ टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया कंट्री। तो वो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम स्किल बेस्ड मतलब अब वो सोल्यूशन बताएगा। यहाँ पे आपको क्या डालने का है कि सोल्यूशन क्या है, सॉल्व कैसे कर सकते हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हम यंगस्टर्स, कि हम लोग
लोग सेल्फ कुछ स्किल्ड करें, अगर हमको जॉब नहीं मिल रहा गवर्नमेंट में तो हम लोग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और वो कैसा बिजनेस रहेगा, हमको खुद से सीखना पड़ेगा कुछ थिंग्स एंड देन वी कैन स्टार्ट। तो इस तरीके से वो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट कैंडिडेट जो स्टूडेंट रहेगा वो बाद में कंक्लूजन करेगा, ठीक है, विद द न्यूट्रल एटीट्यूड, मतलब वो पॉजिटिव भी बताएगा और नेगेटिव भी बताएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कैसे बोल सकता है, एग्जाम्पल वी कैन कंक्लूड टेकिंग ऑल पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से वो सारे पॉइंट्स को कंक्लूड करेगा। लाइक स्टार्टिंग में बोलेगा येस देर इज अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर इन आवर कंट्री बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वी कैन इंक्रीज बाय आवर सेल्फ। तो इस तरीके से वो सारे थिंग्स को सोल्यूशन करके एंड करके न्यूट्रली ही विल यू कैन सी कंक्लूडेड। तो याद रखना जो पॉइंट आपका स्टार्ट हो रहा है उसका एंड होना बहुत ज़रूरी है। इज दैट क्लियर? इस तरीके से आप लोगों को ग्रुप डिस्कशन लिखना होगा। सो लेट्स सी इन द ब्रेनस्टॉर्मिंग सम क्वेश्चंस आर देयर, वी विल सॉल्व। So let's start our last topic of today, that is brainstorming. First question, activity 1. Here you can see how to write an exam. The format is given and must remember in exam also you have to write in the same way. So let's see the question. Rama, Asif, Rachna and Arav are participating in a group discussion. The evaluator has given them a topic. Teenagers are more inclined towards junk food nowadays. Write a suitable dialogue for each participant giving his or her opinion on the topic. So here you can see in exam also must remember starting would be of evaluator. Starting आपको इवैल्यूएटर से स्टार्ट करना है। तो इवैल्यूएटर क्या करता है, व्हाट इज द वर्क ऑफ इवैल्यूएटर? इवैल्यूएटर फर्स्ट, ये स्टेटमेंट भी आप बाय हार्ट कर लो, आई होप तुम लोग को यूज होगा इन राइटिंग इन योर एग्जाम। तो उसमें क्या रहेगा, सी इट इज गिवन you have all been given a few minutes to think on your topic for today's group discussion, which is जो topic दिया है वो यहीं पे वापस से आपको you have to just copy it down and write. Teenagers are more inclined towards junk food and insert into the single inverted comma. You have now begin the discussion. Okay, you would like to who would like to start? तो अभी हु वुड लाइक टू स्टार्ट करके क्वेश्चन मार्क करके स्टॉप करके अब आपको सी 1 2 3 4 पार्टिसिपेंट्स आर देयर, रामा, आसिफ, रचना एंड आरो। अब ये लोगों का यू कैन सी दीज पार्टिसिपेंट्स देयर कन्वर्सेशन विल कम। रामा, आई वुड लाइक टू start as the today's topic of discussion is vital and relevant to all. Asif, yes, I totally agree with Rama because nowadays eating junk food becomes fashion and parents also feel pride to take their teenagers to junk food mall. So here you can see both of them are here, Asif and Rama. Both of them are agreeing with the view that today's parents are really encouraging their children for eating the junk food. Now what's the Arav is saying? Arav का देखो नेगेटिव भी रहेगा, वो पहले पॉजिटिव होके फिर नेगेटिव वे रिप्रेजेंट करेगा. Yes, I would like to add it. Eating fast food or junk food at an early age which continue high sodium, fat, sugar should be harmful for their intestine. A lot junk food at this age can develop the risk of obesity, big blood pressure and other health issues related to stomach. It means Arav, you can see he is not only presenting the view but also giving the setbacks if eaten junk food more then what would be the circumstances. तो उसका problems भी बता के दे रहा है. अब रचना क्या बोल रही है? रचना is also agree with this. Okay, she is saying you are absolutely right, but on the contrary teenagers are not so sensible and thoughtful about their health, particularly at this age. So Rachna is agree with the arrow, but she is saying but children are not knowing, they should know what they are eating. In my opinion parents are also correctly guide to their children or take the responsibility to guide them and make alert them about problems of eating junk food like pizza, burger, chips, finger fries and all. Okay, now the evaluator please saying please conclude. So Arav is taking the initiative. Arav बाद में सारे points को conclude करेगा. आपको एग्जाम में भी ऐसी सारे points को conclude करने आना चाहिए. Okay friends, taking all of your points into consideration. ऐसा line लिखो आप लोग, ऐसा blue में मैंने लिखा है, मतलब ये blue वाला जो line है ना आप लोग by heart कर लो, so that in GD while you are writing in exam आपको ऐसा words याद तो रहे और आप लिखो. मैंने लैंग्वेज यूज्ड इन जीडी में भी आई हैड गिवन द फ्रेजेस
स्टेटमेंट्स की कैसे कैसे आपको क्या क्या वर्ड्स लिखने यूज़ करने, वही वर्ड्स यूज़ भी करना है आपको. वी शुड ट्राई टू अवॉइड एंड कीप अवे टीनेजर्स फ्रॉम जंक फूड एज दे आर हार्मफुल. वी शुड ट्राई टू डेवलप देयर नेचुरल टेस्ट with their healthy and tasty food. So in this way you have to write it. Next is activity 2, activity 3, activity 4. Up to there it's not so important, so I hope you can do it by yourself. Come to the activity 5 where two questions are there. पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है और पार्ट 2 टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है. वी आर स्ट्रिक्टली स्टिक विद हाउ द इन एग्जाम क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम जीडी. जीडी में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हम उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे. सो लेट्स सी. एन इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड, एक्टिविटी 5 फर्स्ट वन. एन इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड गर्ल स्टूडेंट इन योर क्लास हु हैज़ received admission in a reputed college abroad needs monetary help to pursue further studies there. Have a group discussion amongst your friends to seek solutions to help her. Write 4 to 5 views. सिर्फ 4 to 5 views में ही डायलॉग्स ही आपको यूज़ करना है, इतना याद रखना, उससे ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए. सो लेट्स सी. आई हैड प्रेजेंट द आंसर. स्टार्टिंग में आप इवेल्युएटर करके स्टार्ट कर सकते हो. सतीश, इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर ऑल ऑफ अस दैट वन ऑफ योर फ्रेंड हैज़ रिसीव्ड एडमिशन इन अ रेपुटेड कॉलेज अब्रॉड, बट द प्रॉब्लम इज शी नीड मॉनिटरी हेल्प टू परस्यू फर्दर स्टडीज there. Guys, we need to do something. I discussed with my parents. They are ready to give 60,000 rupees. याद रखो, ग्रुप डिस्कशन इज जस्ट लाइक डायलॉग राइटिंग. ओनली यू हैव टू डू इज द फ्रेजल वर्ड्स विच हैड यूज्ड दैट यू शुड नो. एंड इसमें इवेल्युएटर भी रहता है, ठीक है. तो इवेल्युएटर का आप इनिशिएटिव यहाँ पे डाल सकते हो. नेक्स्ट, कुणाल, आई थिंक आई हैव टू बोरो मनी फ्रॉम माई अंकल एंड देन आई विल repay them on installment basis. Next character, Komal, I am earning somewhat from YouTube videos. I can help her in a bit. Okay. Next is Rupali. Rupali, what Rupali is saying, see, I know an NGO which helps such a type of student. We can take help from them. What do you think? So last में Satish is concluding the dialogue and group discussion by saying, by your suggestions and proposal, we can manage sufficient amount for our friend to go abroad. She can easily manage her expenses by this. I am happy that I have such a good friends who discusses on such issues of humanity. So इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो. Okay. Next you can see activity 5, second one. I had prepared the answer for you, student. Question is, there is an inter-school cricket match and your school is losing. As you are the captain, have a group discussion with your teammates in the tea break about the strategy to be followed to save your school from losing the match. Give at least 4 to 5 suggestions. So 4 to 5 सजेशन रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. और तुम्हारा जो ग्रुप है वो लूज़ कर रहा है, तुमको उसको मोटिवेट करना है. Okay, so how you can do the motivation? Let's see. So I had present the answer. You can see in this slide. Caps, come on boys, I know our team is on back foot as we bundled up only 183 runs and our opponent is the two-time inter-school champions. But the positive thing is that we had played our part and they are still not. So guys, we should give resistance and not give away the match so easily. I think our best strategy would be pick up a couple of wickets as early as possible. So ये क्या है, ये क्या motivation है. Okay, you have to motivate to the teammates that we can even win this match. Next character, Balu, I agree with the Caps because chasing 183 low score is not so difficult to defending champions team. So if we try for wicket, it can create pressure on them. The next character is Maddie. I am completely agree with Sandy. Caps and I should ball with new ball as it is hard pitch. Next, Amar. Yes, you are absolutely right. After a few overs of bowling attack, pitch will also help to spinners. Next is Sandeep. I would like to add something that we should work hard on fields also to save runs. That also builds pressure. Next is Krishna. I am sorry to interrupt, but if we set a defensive field for early players, it can compel them to play some risky shots and it might hook some fish. Last one, Caps, is concluding all the
points of all the characters, participants, and what he is saying. Yes, boys, we all can do it as a team. To considering all of your views, I would like to say that attacking, bowling, defensive, fielding, and coordination can help us towards victory. So we can focus on these three things. We can defeat champions and grab the ट्रॉफी. तो इस तरीके से आप मोटिवेट कर सकते हो टू द टीम मेंबर्स. सो गेट रेडी फॉर द बेस्ट फाइट. 3 cheers फॉर आवर टीम. हिप हिप हुर्रे. तो इस तरीके से यू कैन सी, यू कैन मोटिवेट द लूजिंग टीम एंड कैन विन द मैच. सो हियर अ वेरी गुड ग्रुप डिस्कशन आई हैड प्रेजेंटेड. ऐसे ही आपको एग्जाम में भी लिखना है. थर्ड वन देखो, फॉर्म 4 ग्रुप्स इन योर क्लास एंड हैव अ ग्रुप डिस्कशन ऑन द टॉपिक. टॉपिक देखो कौन कौन सा दिया है. रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, बी क्लीन इंडिया. आपका होमवर्क है स्टूडेंट. व्हेन द कॉलेज विल रीओपन आई एम गोइंग टू चेक इट. प्लीज राइट बोथ द 2 क्वेश्चन, रोल ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन एंड क्लीन इंडिया. ग्रुप डिस्कशन बाय yourself. Okay. So by this we come to the end of this lecture. I hope you had understood the group discussion and try to write as much as topics of a group discussion by yourself. Must remember, characters would be there, evaluator would be there, and in between characters sometimes giving the positive and sometimes giving the negative, but at the end you have to conclude all the points and write in a not only negative but also positive. मतलब पूरा कंक्लूड करके आपको एक प्रॉपर स्टेटमेंट लास्ट में लिखना है. तो ये आपका होता है ग्रुप डिस्कशन. इज दैट क्लियर? इट विल कम फॉर 4 marks. ट्राई टू राइट मोर एंड मोर बाय योर सेल्फ. ओके, एंड एंजॉय लर्निंग. दिस इज गरिमा मिस साइनिंग ऑफ. स्टे होम, स्टे सेफ.